In today's class, we are going to discuss about the input impedances of some standard lines. So what are some standard lines? Let me give you some idea. So this category is divided into two parts. Initially, we will discuss about a short circuit line, open circuit line, and some lines of having finite lengths. So what are those lines which are having finite lengths? That also we have to discuss. So first of all, we want to discuss about the input impedance of the standard lines. What is the first line? The first line that we discuss about is input impedance of short circuit line. And let us understand how the transmission line act as your circuit element. Okay. So first of all, what I will do, I will make a transmission line. Okay. So this is my transmission line. So once the transmission line is made, what I will do, this is your transmission line. Okay. So whatever the analysis that we are doing, you also have to do it with me. ठीक है, ये आपको भी साथ के साथ करते रहना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है. So this is your transmission line. Okay, clear. It is having some characteristic impedance Z0. What I will do, I will connect a supply here. So if I have to connect a supply here like this, okay, fine. So we have connected this line there. So this is again your ZG, this is your VG, fine. This is obviously your transmission line which is mentioned here, and in that case I am considering this line is having short circuit load. So how to represent the short circuit load? To represent the short circuit load, we will short this end. तो देखो इस एंड को जस्ट हम लोग शॉर्ट करना चाहते हैं. So this ZL becomes 0. ठीक है. So we want to short this end, and whatever may be the length of this line, let me consider the length of line to be L. So length of this line, let me consider it to be L. Now I want to calculate what is the input impedance which has been seen from this end. So the input impedance that will be seen from this end, this is something which I want to calculate. तो बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? कोई फॉर्मूला अपने पास है? Do we have some formula to calculate this thing? Obviously, this line is your lossless line, and if this line is lossless line, then you know that your Z0 will become under root L by C, or this will become real. Okay, so this line is lossless for sure. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है, do you have any formula by using which you can calculate this Z input which is at a distance L from the load? So again, let me give you this axis. This is your positive X axis. अब ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए. अब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको कुछ भी नया मिलने वाला है नहीं. सो दिस इज x इक्वल टू 0 एंड ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज योर लोड. ओके, सो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस फॉर्मूला ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ ZX विच वॉज Z0 ZL प्लस JZ0 tan बीटा L अपॉन Z0 प्लस JZL tan बीटा L. वेरी सिंपल फॉर्मूला. अभी देखो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ZL इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज इट वॉज शॉर्ट सर्किट लोड. सो सिंस ZL इज इक्वल टू 0 ओम, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज शॉर्ट सर्किट ओम, शॉर्ट सर्किट लोड. तो ZX बिकम्स फ्रॉम देयर JZ0 tan बीटा X. इसको X कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे X मान के चल रहे हैं ना. सो लेट मी राइट इट एज X. ठीक है, बाद में उसको L कर लेंगे इनपुट के लिए. ठीक. So this is coming out to be ZX. चलो ये ZX हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अगर मुझे इसी ZX को Z in करना होता, so what could I have done? Only I need to put X equal to L. So this Z of X equal to L becomes Z in, and the value of this Z in becomes JZ0 tan बीटा L. समझ आ गई बात यहाँ तक सबको? So I hope everyone is comfortable with this concept. Okay, that we have calculated this Z in which is coming out to be JZ0 tan beta L. Since it is coming out to be JZ0 tan beta L, so can you let me know this input impedance which you are calculating at a distance of L based upon these values of L. So what are the various parameters there? So if you get to know there, you can understand that in this case, since it is Z of X equal to L,
which is coming out to be JZ0 tan beta L. Now you know that as this length is changing, this ZX will change. जैसे जैसे लेंथ आप चेंज करते जाओगे ये ZX आपका इनपुट पे चेंज होता जाएगा. So this Zin that you have calculated, it is coming out to be JZ0 tan beta L. JZ0 tan beta L. तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा, so what will be the equivalent circuit of this particular graph? देखना यहाँ पे अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कभी भी, so the equivalent circuit will look like this. This was your load. Okay. यहाँ पे आपने लगा दी सप्लाई. अब देखो ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम लोग यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो क्या पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन को उसके इनपुट इंपीडेंस से रिप्लेस करा जा सकता है? यस. सो द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन इनपुट इंपीडेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओनली अ सिंगल ZN. सो दिस इज योर ZN. सो नाउ लेट मी राइट द टर्मिनल्स ऑल्सो. अच्छा यहीं से कॉन्सेप्ट आपके ट्रांजिएंट का भी डेवलप होगा धीरे धीरे. सो इफ आई हैव टू राइट दीज टर्मिनल्स एज X and Y, so very clearly these two terminals will become X and Y. Okay. तो देखो अब आप क्या बोलना चाहते हो? You want to say that the complete transmission line now has been replaced by its input impedance. ठीक है. तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को अगर आप चाहें you can replace them by their input impedance as long as you want to calculate your network analysis or you want to calculate your electrical analysis. The same thing you do in case of BJT analysis. BJT analysis में भी अगर आपका input impedance पता चल जाता है, the complete BJT is replaced by some resistance or some impedance of the BJT so that you can calculate the current which has been drawn by the transmission line or which has been drawn by the BJT. तो अगर आप इसको Zin से भी replace कर दें, then you can calculate the current which is drawn by this transmission line on this terminals of X and Y end. तो यहाँ तक का पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? That in this case the complete transmission line can be replaced by its input impedance Zin. तो Zin को देखो मैंने ऐसे रजिस्टर जैसा बना दिया है, but this does not mean this is resistive. Okay, you have to consider that this particular thing is your impedance. So this is your impedance. Okay. तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको काफ़ी हद तक क्लियर है. तो ये जो Zin मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज़ योर इम्पिडेंस. बाकी ये आपका जनरेटर वोल्टेज और ये जनरेटर लोड. समझ आया सबको? चलो अब देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हम डिफरेंट केसेस कंसिडर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस, हाउ दिस इनपुट इम्पिडेंस इज हाउ दिस इनपुट इम्पिडेंस Zin इज गोइंग टू लुक लाइक. चलो देखते हैं यहाँ पे एक केस के. सबको ये tan x का ग्राफ दिख रहा है? एवरीवन कैन सी दिस ग्राफ. देख लो एक बार, ग्राफ ये सबको दिख रहा है? तो मैं आगे समझाना स्टार्ट करता हूँ. सो आई होप दिस ग्राफ इज विजिबल टू एवरीवन. ठीक है, जरा देख के बताइए. आई होप दिस ग्राफ इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, सो देयर व्हाट इज tan x. x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बीटा एल से. लेट मी रिप्लेस दिस x विद सम बीटा एल. फाइन. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस tan x इफ बीटा एल इज बिटवीन 0 to π/2. चेक करके बताइए. अगर बीटा एल आपका 0 से π/2 के बीच में है, सो दिस tan बीटा XL विल बी पॉजिटिव और नॉट. तो यहाँ से मैं डिफरेंट केसेस बनाता हूँ. इफ बीटा एल इज बिटवीन 0 to π/2, tan बीटा एल इज पॉजिटिव. इफ बीटा एल बिकम्स एग्जैक्टली π/2, देन tan बीटा एल, देखो जब बीटा एल एग्जैक्टली π/2 हो जाएगा तो tan बीटा एल कहाँ पे टेंड कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी. इट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. व्हाट हैपन्स एट बीटा एल between π/2 to π. So whenever beta L is between π/2 to π, what is the value of tan beta L? अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, π/2 से π के बीच में. So if you are going between π/2 to π, it is coming out to be what? Negative value. तो यहाँ से देखो ये value negative, this value is coming out to be positive. So since this value is negative, you can say that this tan beta L will become less than 0. Let me consider another just value of this beta L equal to π. एक वैल्यू और मैं कंसिडर करता हूँ, ये एग्जैक्टली पाई वाली, ताकि एक टाइम पीरियड पूरा कवर हो जाए. तो एग्जैक्टली पाई पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा एल? इट इज कमिंग आउट टू बी 0. समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 केसेस इन विच वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ tan बीटा एल डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द बीटा एल. क्लियर? एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं दैट हाउ द इनपुट इंपिडेंस इज गोइंग टू लुक लाइक इफ वी वेरी आर बीटा एल
as compared to these 4 cases. So first case if I consider, in which your beta L is changing between 0 to pi by 2. तो यहाँ से L क्या बोल सकते हो आप? L will change between pi by 2 beta, and what is beta? Beta is again 2 pi by lambda. So you can say that if your length is changing between 0 to lambda by 4, in that case your input impedance, which is jz0 tan beta L, you know that z0 is a real quantity because line is lossless. ये tan beta L आपका क्या है? ये है पॉजिटिव. ये z0 आपकी कैसी क्वांटिटी? अंडर रूट L by C because line is lossless. So can you tell me what will be the value of this Zn? This Zn will become J some positive quantity. और देखो क्या फिर आप इसको JXL बोल सकते हो या नहीं? फाइन. तो देखो क्या पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन अपने इनपुट पे एक इंडक्टिव लोड की तरह काम कर रही होगी या नहीं? तो आपने अगर यहाँ पे देखा Zin is equal to JXL, why? Because this Z0 tan beta L was completely positive in which range? In this particular range. So in this particular range, tan beta L was completely positive. So can you tell me this complete transmission line, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखता, यहाँ से खड़ा होकर अगर कोई देख रहा है तो मुझे बताना ये कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन क्या इसको एक सर्किट एलिमेंट जैसा दिखेगा? यस. So the complete transmission line will look like a circuit element, and that circuit element is nothing but an inductor. So that is why sometimes it is called as, you can visualize the complete transmission line as a discrete circuit element if you replace the input impedance, if you replace the transmission line with their input impedance. So once you replace the transmission line with their input impedance, the complete transmission line can be visualized as the transmission line which has been terminated at the input side. तो जो यहाँ पे Zin अभी आपको दिख रहा है, ये मुझे बताना ये Zin अभी आपको कैसा दिखने वाला है, चेक करके बताना. तो Zin आपको जो यहाँ पे दिखेगा ना, दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन राइट इट एज ZL और मे बी दिस विल बी लुकिंग एज एन इंडक्टेंस. तो पहली चीज तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा. तो वो जो सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट वो कुछ ऐसा बनेगा. ये तो थी आपकी सप्लाई, ये आपका इनपुट इम्पीडेंस. ठीक है, यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया था. अब आप क्या करोगे, एक्स वाई टर्मिनल्स को हमेशा होल्ड करके रखोगे. सो दिस इज योर एक्स टर्मिनल, दिस इज योर वाई टर्मिनल. सो विल इट नॉट लुक लाइक एन इंडक्टर? ठीक है, तो अभी आपका इंडक्टर जैसा दिखेगा. और इस इंडक्टर का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? दिस विल बिकम JXL या फिर JZ0 tan बीटा L. ठीक है, ऐसा कभी होगा जब ये पूरी की पूरी लेंथ जो आपने कंसिडर कर रखी थी, ये लेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगी? 0 to लैम्डा बाई 4 या बीटा L यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी करेगा. तो अगर मैं आपको एक प्रोविजन दे दूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोविजन दे दूँ, देखो यहाँ पे ये, कि जिससे आप लाइन की लेंथ को ना घटा बढ़ा सकते हो. कैसे आप लाइन की लेंथ को घटा बढ़ा सकते हो? इफ़ यू हैव अ प्रोविजन बाय यूजिंग विच यू कैन adjust the length of the transmission line. So if you are adjusting your transmission line within the length of 0 to lambda by 4, if the load is short circuited, then the complete transmission line will behave as an inductor at the input of the transmission line. तो आप बिल्कुल एक इंडक्टर से रिप्लेस करो, बट उस इंडक्टर का जो आपका इंपिडेंस आएगा वो इंपिडेंस आप करेक्टली रिप्लेस करना विद JZ0 tan बीटा L. अगर ये पहला केस सबको समझ आ गया, देन सब्सिक्वेंट केसेस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? बोलो. क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो एक बार कंफर्म करो ताकि बाकी केसेस में मैं फटाफट आपको समझा सकूं. है ना आसान यहाँ तक? ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक ट्रांसमिशन लाइन एक इंडक्टर की तरीके बिहेव कर सकती है, प्रोवाइडेड इट इज शॉर्ट सर्किटेड एट वन एंड एंड यू आर रिप्लेसिंग द ट्रांसमिशन लाइन विद देयर इनपुट इम्पिडेंस. सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो चलो मैं सेकेंड केस पे आता हूँ. सो लेट मी कम ऑन टू द सेकेंड केस. On the second case, if I consider my beta L equal to pi by 2, okay. So if beta L is equal to pi by 2, obviously everyone can calculate the value of L. It will come out to be lambda by 4. Fine. In that case, Zin is equal to JZ0 tan beta L. And what will be this Zin? So Zin will become JZ0 tan 90. What is tan 90? Infinity, which means now input impedance is having infinity resistance. Infinity resistance का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट. Infinity resistance means क्या होता है?
ओपन सर्किट है ना. So if it is infinity resistance, which means open circuit. Otherwise, you should also consider this case. Suppose you are having a parallel LC circuit. Okay, suppose this is your parallel LC circuit, and obviously it is at resonance. तो अगर एक parallel resistance LC circuit हम लोग लें, which is at resonance. So can you tell me what will be the impedance of this thing? यहाँ से अगर मैं इसका impedance calculate करूँ, so this becomes J BC minus BL, है ना, ऐसे ही होता है. So what happens at resonance? At resonance BC is equal to BL, मतलब इसका एडमिटेंस और इसका एडमिटेंस बराबर होना चाहिए. So your YEN becomes 0. If YEN is 0, can you tell me what will be the ZN if I look into it? Will it not be infinity? Yes. तो शायद जिसने भी बेसिक नेटवर्क पढ़ा होगा उनको पता होगा दैट इन केस ऑफ पैरेलल एलसी सर्किट, इन केस ऑफ पैरेलल एलसी सर्किट, if it is in resonance, in that particular case the input impedance of that parallel LC circuit is infinity, or the input admittance is always 0, because in that case your admittance across the conductor, across the inductor, and the admittance across the capacitance will always be equal, which means the admittance is always going to be 0, but your input impedance will seems to be infinity. ये पॉइंट कितने लोगों को समझ आया? इसको भी एक बार कंफर्म करो. अरे कमेंट सेक्शन में लड़ो मत यार, पहले इधर देखो. ये जो चल रहा है ना, इस पे पूरा फोकस. मैं इतनी बार आपको समझाता हूँ कि जब भी आप 1 घंटे तक पढ़ें क्लास या 2 घंटे तक पढ़ें, आपका दिमाग स्क्रीन से हटना ही नहीं चाहिए. जो भी टीचर एक एक वर्ड बोल रहा है उसको पूरी तरीके से दिमाग में प्रोसेस करना चाहिए. रफ कॉपी लेके बैठो, उस पर प्रैक्टिस करो. यू शुड नॉट बी फोकस्ड एट ऑल ऑन द कमेंट सेक्शन अंटिल अनलेस यू डू नॉट वांट टू आस्क समथिंग. तो जब तक आपको कुछ नहीं पूछना है तब तक देखो ही मत कमेंट सेक्शन ना, इधर ही देखते रहो, यहाँ पे देखते रहो, पूरा फोकस करते रहो. जितना फोकस देखो, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, एग्जाम से एक दिन पहले फोकस नहीं बनेगा यार. अगर आपको 12 तारीख को एग्जाम है तो 11 तारीख को आपका फोकस नहीं बन जाएगा रातों रात कि कोई आपको वरदान दे देगा या कोई आशीर्वाद दे देगा और 3 घंटे आपका फोकस बन जाएगा. फोकस आपको बनाना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो भी काम करो फोकस से करो. अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे जब आप बनाओगे ना, देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. तब आपका धीरे धीरे हैबिट बनता चला जाएगा. तो हमेशा कोई भी क्लासेस अटेंड करो, ऑफलाइन ऑनलाइन, खुद से पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है, तो ट्राई टू फोकस देयर एज मच एज पॉसिबल, देन यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन. अब हम लोग ये बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने खुद एग्जाम निकाला हुआ है. हम लोग भी उसी दौर से गुजरे जिस दौर से आप गुजर रहे हो. तो जाहिर सी बात है हमारा जो इनपुट होगा वो कामेश सर इनपुट दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, अंकित सर दे रहे हैं, शंकर सर दे रहे हैं, पंकज सर दे रहे हैं. सारे टॉप 100 रैंकर्स रहे हैं कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में, जो कि बिल्कुल आसान टास्क नहीं है. किसी भी एग्जाम में अगर आपको टॉप 100 रैंक लेके आनी है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो इफ एज अ टीचर वी आर गाइडिंग यू समथिंग, वी आर telling you something, then obviously it has to be understood and it has to be followed for by the serious students who want to crack the examination, who want to get the job obviously. ठीक है, चलो. तो अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया? सबको समझ आ गया ये पॉइंट? यस. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि दिस इनपुट इंपेडेंस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट इन दिस केस? देखो, अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर देख के एक भी इंसान सेलेक्ट होता है या एक भी इंसान की नौकरी लग जाती है ना, तो वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट. एक भी इंसान की लाइफ अगर बदलती है सारे के सारे सेशंस देख के, उसकी जॉब लगती है और वॉट एवर ही अचीव्स इन हिज लाइफ, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दिस टाइप ऑफ सेशंस. चलो देखो, तो यहाँ पे देखो क्या ये जो पूरा का पूरा एक्स और वाई वाला टर्मिनल था, इफ आई कंसिडर माई एक्स एंड वाई टर्मिनल, सो कैन आई रिप्लेस दिस एक्स वाई टर्मिनल विद a parallel LC circuit or not? Yes or no? But you have to tell in this case that this parallel circuit is at resonance, या कभी कभी इसको resonant parallel LC circuit भी बोला जाता है. ठीक है, तो एक एक पॉइंट याद रखना. इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो मैं लास्ट में भी रिवाइज भी करवा दूंगा, बट अभी के लिए ये पॉइंट्स आप याद रखें. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ठीक है, तो मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज शॉर्ट सर्किटेड एंड द लेंथ ऑफ दैट ट्रांसमिशन लाइन बिकम्स λ/4, so can the complete transmission line be replaced by a parallel LC circuit which is in resonance already? तो आप एक ऐसे पैरेलल LC सर्किट से पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन को रिप्लेस कर सकते हैं which is at resonance already, or sometimes it is also called as that your complete transmission line has now been replaced by a resonant parallel LC circuit. ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो. तो ये पॉइंट भी सबको समझ आया कि ये केस 2 में हम लोगों ने क्या किया. तो देखो, बाकी केसेस बहुत ही जल्दी आपको समझ आ जाएंगे. थर्ड केस, इन थर्ड केस सपोज इफ आई कंसिडर
my angle of this thing pi by 2 between pi. यहाँ से आप L कैलकुलेट कर लेना. Once you calculate the L, you will get the length which is varying from lambda by 4 to lambda by 2. तो अगर लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी कर रही है, in that case you know that your tan beta L is negative. So Zn becomes jz0 tan beta L, okay, and somehow it behaves as your minus j xc. Why? Because in this case your tan beta x becomes negative. तो बताना इस बार ये लोड कैसा, सॉरी ये इनपुट इम्पिडेंस का नेचर कैसा हो जाएगा. So this will behave as a capacitive behavior. तो अगर कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन को फिर से रिप्लेस करना हो, ये आपकी सप्लाई, दिस इज योर इंटरनल इम्पिडेंस, दिस इज द स्विच, दीज आर द टर्मिनल्स x and y. So these are the terminals x and y which we are having. Okay, this is your Vg, this is your Zg. Between these two terminals, now what you will do, you will replace a capacitor, and if you have to talk about its impedance, then the impedance becomes jz0 tan beta L, which is equivalent to minus j xc. ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आया. इस केस में आपने क्या करा, कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया. सो इफ यू आर रिप्लेसिंग अ कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन विद अ कैपेसिटर, इट्स इनपुट इंपीडेंस इज गोइंग टू बी सम jz0 tan beta L, बट इट विल बी काउंटेड एज योर नेगेटिव इंपीडेंस. चलो अब देखो फोर्थ केस भी देख लो. तो फाइनली ये सारे पॉइंट्स हम लोग समराइज भी कर लेंगे. सो 4 पॉइंट्स में योर बीटा एल बिकम्स पाई. तो एक टाइम पीरियड हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, उसके बाद यही प्रोसेस आपका रिपीट होता रहे. सो लेट मी कंसिडर बीटा एल इक्वल टू पाई. इन दैट केस your tan beta L becomes 0, and this leads to L equal to lambda by 2, half wavelength. Lambda by 2 means half wavelength. Lambda by 4 means quarter wavelength. इसको half wavelength बोलते हैं और lambda by 4 को बोलते हैं quarter wavelength. This is called as quarter wavelength. This is called as quarter वेवलेंथ. ठीक है, चलो tan बीटा एल 0 आ गया. सो व्हाट विल बी Z in? ZL becomes jz0 tan बीटा एल और इट बिकम 0. तो एक तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इनपुट एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खुद इनपुट भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, बट अगर आप उसको सर्किट एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं, देन नाउ यू कैन कंसिडर अ सीरीज LC सर्किट. दिस इज योर सीरीज LC सर्किट and these are ends of x and y. Okay, so if you want to look it from here, यहाँ से अगर आप इसको देखना चाहते हैं, so in that case your Zin will become what? J times XL minus XC. What will happen at resonance? At resonance you know that XL will become XC, so your Zin becomes 0. ठीक है, तो अगर आपके लाइन की लेंथ हो गई हाफ वेव लेंथ, अगर लाइन की लेंथ आपने हाफ वेव लेंथ कंसिडर कर ली, यू हैव कंसिडर इट एज लैम्डा बाई 2. इन दैट केस द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन नाउ कैन बी रिप्लेस्ड बाय सीरीज LC सर्किट विच इज इन रेजोनेंस ऑलरेडी. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाएंगे, so the equivalent circuit looks like this. LC. So this is your LC. This end is X, this end is Y. But यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा, सिर्फ LC लिखने से काम नहीं चलेगा. You also have to tell that this LC circuit is at resonance. ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस पे रहेगा. ये स्विच हो गया, ZC लगा लो, यहाँ पे इम्पिडेंस लगाना चाहो तो लगा लो ZC. ठीक है, तो ये चारों ही केसेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट. तो वन बाय वन कंक्लूड करते हैं. Initially if we consider that the line is terminated in a short circuit load, so line is terminated in a short circuit load. Now if you vary your L, based upon the value of the L, the complete transmission line can be replaced by some standard circuit elements at its input. So if your transmission line's length is between 0 to lambda by 4, which means between 0 to quarter wavelength, in that case complete transmission line can be replaced by an inductive load. If your transmission line's length becomes exactly lambda by 4, in that case
the complete transmission line can be replaced by a parallel LC circuit which is in resonance, which has to be told very significantly. Now if the transmission line length increases from lambda by 4 and it goes to lambda by 2, in that case the complete transmission line at its input can be replaced by a capacitive impedance. Apart from that, if L becomes exactly equal to lambda by 2, in that case the complete transmission line can be replaced by a series LC circuit which is present in at resonance. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको सारे क्लियर हैं तो हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं. इजी है, इसको याद रख सकते हो. तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं. दैट इफ लाइन इज क्वार्टर वेव लेंथ और हाफ वेव लेंथ, व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस, विच एलिमेंट कैन बी रिप्लेस्ड एट इट्स इनपुट, लाइक दैट. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. होपफुली ये बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन अभी आप लोगों को काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा. ठीक है यार, चलो आगे चलते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू डू द सेम थिंग विद द ओपन सर्किट लाइन. तो अभी आप ये खुद से भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग बाय योरसेल्फ. तो इसको भी कंप्लीट करते हैं. दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन दैट वी आर हैविंग. ओके, लेट मी कनेक्ट इट थ्रू अ लोड. तो सोर्स और लोड दोनों कनेक्ट कर लो. दिस एंड इज एक्स एंड वाई. लेट मी कॉल दिस एज वी जी. दिस इज योर जेड जी. दिस एंड इज जेड नॉट. एंड लेट मी कनेक्ट अ लोड विच इज ओपन सर्किट इन नेचर. So if it is open circuit in nature, obviously ZL will tend to infinity. Line is lossless in nature. Since line is lossless in nature, so Z0 becomes under root L by C, which is real in nature. Okay, again I want to replace complete transmission line at its input by the input impedance. Now you very well know the formula of the input impedance. What is the formula of the input impedance that you are having? The formula of the input impedance becomes, अब मैं डायरेक्टली बीटा L लिख दे रहा हूँ, Z0 ZL plus J Z0 tan beta L upon Z0 plus J ZL tan beta L. क्लियर? यहाँ से अगर आप इसमें ZL टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल देंगे, if ZL tends to infinity, you put in it, you will get Zin equal to minus J Z0 cot beta L. So this is the input impedance of open circuit transmission line. So this becomes minus J Z0 cot beta L. Fine. So this you have to remember. अब यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आएगा, ये भी आपके बीटा एल का फंक्शन है. जैसे जैसे बीटा एल को चेंज करते जाओगे, कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिप्लेस एट इट्स इनपुट विद सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स. सो दैट इज वाई समटाइम्स वी से दैट द कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ सर्किट एलिमेंट. उनको आप एक सर्किट एलिमेंट की तरह भी देख सकते हैं जो इनपुट पे किसी पर्टिकुलर सर्किट की तरह बिहेवियर शो कर रहे होंगे. चलो यहाँ पे देखते हैं. जेड इन मिल गया माइनस जे जेड नॉट कॉट बीटा एल. तो यहाँ से रेंज बनाने की कोशिश करते हैं. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट बीटा एल. सो लेट मी राइट दिस एक्स एज बीटा एल and this x as beta L. So this is the graph of cot beta L. You are interested in this quantity. यहाँ पे देखो बाहर माइनस जे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस जे जेड नॉट टैन बीटा एल. ओके, ये पहले से लगा हुआ है. तो यहाँ पे भी मैं 4 केसेस आपको देता हूँ. सो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दोज 4 केसेस. द फर्स्ट केस इज दैट 0 to बीटा एल टू पाई बाई 2. तो 0 to पाई बाई 2 में अगर आप देखो ये रहा, तो ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव. अगर कॉट बीटा एल पॉजिटिव है, सो व्हाट अबाउट दिस Z in माइनस जे जेड नॉट, या मैं कॉट बीटा एल को ही लिख देता हूँ पहले, बाद में उसको लिखते हैं. ठीक है, चलो पहले कॉट बीटा एल ही लिख लो. सो दिस कॉट बीटा एल becomes positive. Second, what happens exactly at beta equal to pi by 2? So exactly at beta L equal to pi by 2, this cot beta L becomes 0. So you can write this cot beta L equal to 0. तो cot beta L हमने यहाँ से कर दिया 0. थर्ड केस पे आप आ जाइए. If your beta L is between pi by 2 to pi, so if it is between pi by 2 to pi, तो ये वैल्यू नीचे वाली देखो कितनी मिल जाएगी आपको. Will it not be less than 0? Yes. So this quantity of cot beta L is going to be less than 0. Similarly, the fourth case in which the beta L becomes pi. अच्छा पाई तक ही कंसिडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही इतना है ना, 0 से पाई. इसके बाद वाला जो जर्नी होगा इट विल बी ऑटोमेटिकली एज इट इज़ इन द केस ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड. तो जो फर्स्ट टाइम पीरियड में आपने अचीव कर लिया वही जर्नी बार बार रिपीट होती रहेगी. तो यहाँ से बीटा एल अगर आप देखें, सो दिस कॉट बीटा एल इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी करता है.
ये देखो, तो बीटा एल एग्जैक्टली इक्वल टू पाई पे इट इज टेंडिंग टू सम माइनस इन्फिनिटी. क्लियर? चलो, सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन दैट बीटा एल इज इक्वल टू पाई, कॉट बीटा एल इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. तो एक एक करके यहाँ से कैलकुलेशन केसेस बनाना शुरू करते हैं. सो फॉर द फर्स्ट केस, you know that if beta L is between 0 to pi by 2, so this length L becomes 0 to lambda by 4 as it was in the case of short circuit line. अब देखो काफ़ी सिंपल सा डिस्कशन यहाँ पे. फॉर दिस लेंथ cot beta L was positive. So what about Zn? Zn is minus j z naught cot beta L. Okay. तो यहाँ से अगर ये पूरी क्वांटिटी आप देखते हैं, सो दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ कैपेसिटिव इम्पिडेंस. सो दिस नाउ कैन बी ट्रीटेड एज माइनस जे एक्स सी. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट इन दिस केस? दिस वाज योर सप्लाई, इनपुट इम्पिडेंस, स्विच, दीज आर द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई एंड्स. अब पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन को उठाओ और एक कैपेसिटर से यहाँ पे रिप्लेस कर दो, और इस कैपेसिटर का आपको इम्पिडेंस कितना मिलना चाहिए? इट शुड कम आउट टू बी जे जेड नॉट टैन बीटा एल. समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? तो देखो जस्ट उसी का ऑपोजिट हो रहा है ना. अगर आपने शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए निकाल लिया है तो ओपन सर्किट के लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन विद इन दिस लेंथ इट वाज बिहेविंग एज योर इंडक्टिव लोड but inductive input impedance, but in this case between 0 to lambda by 4 it is behaving as your capacitive input impedance. Let us come on to the case 2. For this the beta L is exactly equal to pi by 2. So if beta L is exactly equal to pi by 2, so cot beta L becomes 0. If cot beta L becomes 0, input impedance will also become 0. Now you know that input impedance 0 can be obtained by two methods. One from the short circuit, another from the series LC circuit in resonance. Series LC circuit in resonance. ओके, तो हमें क्योंकि सर्किट एलिमेंट से रिप्लेस करना था, इस वजह से हम लोग रेजोनेंस वाला जो लोड होगा उसी से रिप्लेस करेंगे. देखिए, so again it is going to be a series LC. These ends are X and Y. इसको आप VG ले लो, इसको ZC कर लो, and you can directly close this switch. Okay. So in that case what will happen? ये देखो, यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा that these are at resonance. At resonance. Okay. So these are the input impedances which you will look at. जीरो इनपुट इम्पिडेंस आपको दिखेगा यहाँ से अगर आपने सीरीज एलसी सर्किट को रेजोनेंस में डाल दिया तो. सिमिलरली दिस कुड हैव आल्सो रिटन इट एज जेड इन. वो अंडरस्टूड है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट केस, व्हेन योर बीटा एल बिकम्स बिटवीन लैम्डा बाई 4 टू लैम्डा बाई 2. अभी आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है. बीटा एल इज बिटवीन पाई बाई 2 टू pi. So beta L is between pi by 2 to pi. So L becomes lambda by 4 to lambda. तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट केस कंसिडर कर. फाइन. So these cases we have considered. On this case you know that your cot beta L was negative. So Zn is equal to minus j z naught cot beta L. This will behave as your inductive impedance. So this is totally resembling ZXL. यहाँ पे अगर आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, so the equivalent circuit will look like this. This is your VG, this is your ZC, this is the switch. Again, just you have to replace XY terminals with a inductive load. ये XY terminals आपको ऐसे दे रखे हैं, इनको आप inductive load L से replace करिए. This is your Zin. And the impedance that it will show is JZ0 tan beta L. तो पहला केस अगर आपने फोकस से समझा तो रेस्ट ऑफ द केसेस आर वेरी ऑब्वियस. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट केस? व्हाट विल बी द लास्ट केस? तो लास्ट केस में देखो क्या पैरेलल एलसी सर्किट वाला ही केस बचा. तो इस केस में अगर आपकी लेंथ लैम्डा बाई 2 हो जाती है, सो दैट विल गिव यू द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ पैरेलल एलसी सर्किट विच इज प्रेजेंट एट रेजोनेंस. तो लास्ट केस भी कर लो, वैसे वो काफ़ी ऑब्वियस है. Was third case. Let us come on to the fourth case.
In case of fourth case, beta L is equal to pi. So this L becomes lambda by 2. So your beta L becomes tending to, tan beta L becomes tending to माइनस इन्फिनिटी. तो देखो कॉट बीटा एल इस बार माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. सो दिस जेड इन इज टेंडिंग टू एक्चुअली माइनस जे जेड नॉट कॉट बीटा एल and your Zn is tending to infinity. So this Zn is tending to infinity, which means there might be two possibility. एक तो ओपन सर्किट, बट ये किसी सर्किट एलिमेंट से मैच नहीं हुआ. Another parallel LC circuit at resonance. ठीक है. तो ये चारों केसेस सबको समझ में आ गए. तो ये चारों केसेस से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं. नाउ यू कैन रिमेंबर एनी वन ऑफ देम. If the line is short circuited in nature, in that case just you have to consider the length. If length is between 0 to lambda by 4, inductive, exactly lambda by 4, parallel LC, lambda by 4 to lambda by 2, capacitive, exactly lambda by 2, in that case series LC. तो एक याद रखो, दूसरे में उसका काउंटर पार्ट कैलकुलेट कर लेना. So hopefully you can remember all these points. These are very simple to understand. Okay, now let us come on to the next topic. तो ये पहला टॉपिक अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, ताकि मैं अगले टॉपिक की तरफ अप्रोच कर सकूँ. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आ गया सबको समझ में? तो देखो कितना आसान टॉपिक था. अब देखना इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स पे. तो वो नेक्स्ट हाफ में हम लोग क्वेश्चंस ही करने वाले. ठीक है, ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक इट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द इनपुट इंपेडेंस ऑफ फाइनाइट लेंथ लाइन. सो व्हाट आर द इनपुट इंपेडेंस फॉर्मूला? सो एवरीवन रिमेंबर्स दैट द फॉर्मूला ऑफ द इनपुट इंपेडेंस इज Z0 ZL plus JZ0 tan beta L upon Z0 plus JZL tan beta L. Okay, these are the formulas of the input impedance. Clear? चलो अब केस वन में देखते हैं. In the case one I am considering the length of the line to be lambda by 8. So for the lambda by 8 transmission line I want to calculate the input impedance. Fine. So you know that the formula of the input impedance is Z0 ZL plus J Z0 tan beta L upon Z0 plus J ZL tan beta L. So first of all I have to calculate the value of beta L. How to calculate the value of beta L? You know that the beta L will become 2 pi by lambda into lambda by 8, and it eventually turns out to be pi by 4. So if the beta L is coming out to be pi by 4, what will be the value of tan beta L? So you can calculate the value of tan beta L, which will become 1. You can put all these values there and eventually you will get the value of Zn equal to Z0 ZL plus JZ0 upon Z0 plus JZL. Yes or no? This will be the value of Zn in this particular case. अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में जो आपने लैम्डा बाई 8 कैलकुलेट करा, तो आप ध्यान रखना कि बीटा एल, इफ बीटा एल कम्स आउट टू बी पाई बाई 4, और समटाइम्स द बीटा एल कैन ऑल्सो बिकम द मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 4 एट विच योर बीटा एल बिकम्स 1. तो देखना ये कौन कौन से मल्टीपल्स आएंगे. यहाँ से देखो इस ग्राफ से, ये देखो, एक तो पाई बाई 4 पे आपको मिलेगा 1, अगला 1 कहाँ पे मिलेगा देखना. एक तो आपको 1 कहाँ पे मिल रहा है, पाई बाई 4 पे, यहाँ पे कहीं. अगला 1 आपको कहाँ पे मिलेगा, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू चेक. तो अगला 1 जो आपको मिलेगा ना, वो पाई टाइम पीरियड के बाद मिलेगा. सो पाई टाइम पीरियड मीन्स द नेक्स्ट 1 विल बिकम एट पाई प्लस पाई बाई 4. तो ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ बीटा एल इज इक्वल टू पाई बाई 4 की बात नहीं यहाँ पे ना और भी बहुत सारी बातें हो जाएंगी. पहले इतना समझिए. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस कैलकुलेशंस एंड यू कैन रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ Zn. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है. चलो अब अगला पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनो. अगर मैं ऐसा बोलता कि बीटा एल पाई बाई 4 की जगह पे अगर बीटा एल मेरा हो जाता 5 पाई बाई 4, ओके, या 9 पाई बाई 4 या 13 पाई बाई 4 एंड सो ऑन, तो क्या उस केस में भी tan बीटा एल 1 मिलता है या नहीं? यस, tan बीटा एल वुड हैव बीन 1. Which means if I have to generalize this particular line, then I'll write it as that beta L becomes 4n plus 1
पाई बाई 4, ठीक है, n equal to 0, n equal to 2, n equal to 3. So can you calculate the length? If you want to calculate the length, this will become 2 pi by lambda. This becomes 4n plus 1 pi by 4. ठीक है, पाई पाई कैंसिल कर लो, तो यहाँ से आपको लाइन मिलेगी 4n plus 1 लैम्डा बाई 8. चेक करिए, है ना. तो देखो ये 2 तो यहाँ पे आ गया, देखो जो कैंसिल हो रहा है ना मैं उसको हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा आसानी से दिख जाएगा. देखो ये पाई पाई गया है यहाँ से, और तो कुछ जा नहीं रहा, लैम्डा तो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 8. ठीक है, तो अगर लाइन की लेंथ आपकी आती है 4n plus 1 लैम्डा बाई 8, मतलब आपकी लाइन की लेंथ क्या दे देगा वो, लैम्डा बाई 8 या 5 लैम्डा बाई 8 या 9 लैम्डा बाई 8 या 13 लैम्डा बाई 8 एंड सो ऑन. सो इन ऑल द केसेस ऑफ दिस L is equal to 4n plus 1, all the cases of L is equal to 4n plus 1 lambda by 8 will behave in the similar fashion. समझ आ गई बात. तो इसको आगे से याद भी रखना, n की वैल्यू इंटीजर है, 0 से स्टार्ट कर लेना, पुट करते जाना, where n belongs to integer and you can start putting the values of n 0, 1, 2 and so on. ठीक है, so all the lines which is having the length of 4n plus 1 lambda by 8 will behave in the very similar fashion. In all those cases the beta L will become pi by 4 or 5 by 4 or 9 pi by 4. Eventually your tan beta L will become 1. तो जैसे ये लेंथ की वैल्यू ये होती है, eventually your tan beta L will always become unity. So very important conclusion, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. तो मान लो आपको 13 लैम्डा बाई 8 उसने दे दिया, तो अगर आपको याद है ये चीज़ तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं. फाइन. सो आई होप दिस केस 1 इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सबको समझ आया केस 1? कोई भी ऐसा जिसको केस 1 नहीं समझ आया? तो मैंने जानबूझ के पहले लैम्डा बाई 8 से स्टार्ट किया ताकि बीटा एल में पाई बाई 4 निकाल सकता. एक बार बीटा एल में पाई बाई 4 निकाल सकता तो मैंने यहाँ से दूसरी कंक्लूजन भी ड्रॉ कर ली. ठीक, चलो केस 2 पे आते हैं. लेट अस कम ऑन टू द केस 2. इन केस 2, ओके, सो इन केस 2 लेट मी कंसिडर द लेंथ ऑफ द लाइन as odd multiples of lambda by 4. Okay, in this case I am considering the length of the line to be odd multiples of lambda by 4, 2n plus 1 lambda by 4. Okay, sometimes it is also called as quarter wave transformer for n equal to 0. तो अगर आप इसमें n equal to 0 पुट कर दें तो obviously your length will become lambda by 4. So for n equal to 0, this length that you are getting it here is called as quarter wave transformer. Quarter wave transformer. ट्रांसफॉर्मर का मतलब ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी दिख रही है, लैम्डा बाई 4, बट हम ये जनरलाइज करना चाहते हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा एल? द वैल्यू ऑफ बीटा एल बिकम्स 2n plus 1 पाई बाई 2. सो व्हाट विल बी द टैन बीटा एल? तो देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. आप ये ग्राफ चेक कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, इसलिए ग्राफ भी बना हुआ है. ये देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सब पे वैल्यू कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैन बीटा एल एट दीज एंगल्स? ये देखो एट दीज एंगल्स टैन बीटा विल टेंड टू infinity. So if tan beta L is tending to infinity, you just can calculate the value of input impedance. Input impedance becomes Z0 ZL plus J Z0 tan beta L upon Z0 plus J ZL tan beta L. Since tan beta L is tending to infinity, so in that case your Zin will become Z0 square upon ZL. ठीक है, तो ये सारे याद रखने पार्ट्स है ना, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर 4n plus 1 लैम्डा बाई 8 आता है तो कैसे बिहेव करना है. अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 आता है इसको ऐसे रीड कर लें, सॉरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 4. सो इन ऑल दीज केसेस योर tan बीटा L विल टेंड टू इन्फिनिटी. ओके, इन ऑल दीज केसेस tan बीटा L टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो जो आपको याद रखना है ना वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 4 याद रखना, मतलब लैम्डा बाई 4 हो, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, 9 लैम्डा, वॉट एवर.
in all those cases you will get your tan beta L tending to infinity, and more importantly your input impedance will become Z0 square by ZL. ठीक है, तो मतलब ये जो लोड इम्पिडेंस दिख रहा है ना और इनपुट इम्पिडेंस, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो Z0 स्क्वायर मिल जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट लाइक दिस, that in case of quarter wave transformers, if I multiply my Zn with ZL, I will get Z0 square. So that is also one of the convenient ways to remember this particular expression. Input ले लिया, load ले लिया, दोनों को करा multiply, मिल गया Z0 square. Okay? आ गया यहाँ तक समझ में सबको? तो ये पॉइंट भी काफ़ी क्रूशियल, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स. चल सकते हैं आगे? चलो आगे चलते हैं. केस 3. इन केस 3 आई एम कंसिडरिंग the length of the transmission line to be lambda by 2. Okay, so if I consider the length to be lambda by 2, the beta L will become pi. ठीक है, तो बीटा L यहाँ से आपको कितना मिलेगा? पाई. What about tan beta L? So tan beta L becomes 0. ठीक है, अगर मैं L इक्वल टू लैम्डा लेता तो बीटा L would have been 2 पाई, है ना. लैम्डा को आप लिख लेते 2 पाई बाई बीटा, या फिर अगर बीटा से मल्टीप्लाई करते ये 2 पाई मिलता है. इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan बीटा L? देन ऑल्सो इट बिकम्स 0. सपोज इफ आई टेक इट्स वैल्यू एज 3 लैम्डा बाई 2. ओके, सो व्हाट विल बी बीटा L? दिस विल बिकम 3 पाई. अगेन tan बीटा L becomes 0. So the third generalized length that you are getting it as is your L is equal to n lambda by 2. Okay. So it is the integer multiples of lambda by 2. You can start the values of n from 1, क्योंकि 0 रखने पे तो लेंथ 0 हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना. In all those cases your tan beta L is going to be what? In all those cases your tan beta L is going to be 0. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने. यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. Zn will become Z0 ZL plus J Z0 tan beta L upon Z0 plus J ZL tan beta L. तो देखो tan beta L की आप वैल्यू 0 पुट करोगे, इवेंचुअली यू गेट टू नो दैट इनपुट इम्पिडेंस इज नथिंग बट द लोड इम्पिडेंस. इनपुट इम्पिडेंस बिल्कुल लोड इम्पिडेंस के साथ मैच हो जाएगा. ऐसा समझना कि लोड इम्पिडेंस ट्रांसफर होकर कहाँ पे चला आया? इनपुट के पास चला है. सो इन दैट केस your ZL will be transferred to your input impedance. So what are the summaries if I have to give you? If I have to give you the summary of this class, then these following points you can remember. The first point you should remember is that if length becomes 4n plus 1 multiple of lambda by 8, in that case input impedance becomes Z0 ZL plus JZ0 upon Z0 plus JZL. This is your input impedance. Clear? Secondly, if the input impedance lambda becomes odd multiples of lambda by 4, ठीक है, odd multiples of lambda by 4, in that case Zin will become Z0 square by ZL. ZL नीचे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ZL नीचे रहेगा, इस बात को याद रखना. ये क्रॉस कनेक्शन रहेगा इनका. थर्ड केस, in the third case if I talk about length, if this length becomes n lambda by 2, in that case the load impedance will itself be transmitted to the input impedance. तो ये तीन बातें आप याद रखेंगे. अगर ये है आपका 4n plus 1 मल्टीपल, ये है ऑड मल्टीपल्स, ये है इंटीजर मल्टीपल्स, एंड दिस इज 4n plus 1 मल्टीपल. ओके, तो लैम्डा बाई 8 के केस में 4n plus 1 मल्टीपल, लैम्डा बाई 4 के केस में ऑड मल्टीपल्स, लैम्डा बाई 2 के केस में इंटीजर मल्टीपल्स. इफ यू गेट, यू विल ऑलवेज गेट दीज फॉलोइंग रिजल्ट्स विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड इन इटसेल्फ. तो ये लॉसलेस लाइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए. सबको समझ आ गया सारी बातें? ठीक है, आया कुछ समझ में? चलो, तो टाइम भी हो गया आपकी क्लास का. ठीक है, तो अब अगली क्लास आपकी 8:15 पे है. 8:15 पे हम लोग इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे. सो विल ट्राई टू फॉलो द सेम रिचुअल, दैट वन थ्योरी क्लास फॉलोड बाय वन न्यूमेरिकल क्लास इन मोस्ट ऑफ द केसेस. द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट क्लास, इन द सेकंड क्लास वी विल आल्सो ट्राई टू implement the concepts in the given questions. ठीक, चलो फिर. It's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.